I'm a foodie. Foodie. Foodie, yeah. I love to eat. So during shoots, yeah, I avoid, but when I'm at breaks, yeah, I hog on food. But I'm an animal lover too. Oh. So that's why you eat them. Not really. When I see some incident, when some… No, people say, I love my food. So you love animals, so you put them in the food. No, I've tried many a times, like, okay, I have to quit eating non-veg. I have tried that also. So I've stayed away from non-veg for a week or 10 days. But the minute when I see somebody having non-veg, I'll be like, okay, from next month. I don't know. How do I come out of this? Like, of course, like even I have 2 pets at home, and I don't know. Like, what do you say, Sadhguru, about this whole thing, this non-veg and not eating non-veg? When are you planning to eat the pets? Oh no, no, they're like my babies. And that's what they say. Even I've seen people talking to the chicken and all very nicely, and next week they'll eat them up. Are you vegetarian or non-vegetarian? I'm a humanitarian. Humanitarian. Say, today there's substantial documentation to show that plants are as sensitive as any other creature. So whether you eat a plant or an animal or whatever, it is still violence. Only thing is they don't scream. They do scream, you don't hear, that's all. There's enough evidence to show that they do scream. It has been recorded like this, that if let's say an animal comes, see among the trees, let's say there are, let's say 1,000 or 10,000 trees here. Let us say an elephant came and starts eating the leaves of the tree. Immediately this tree will send messages to all its species that it is being eaten by whatever. I don't know whether it'll recognize an elephant or not, but it is being eaten like this. And within minutes, if the elephant goes there to the other trees, all the trees would have produced a certain amount of poisonous material in their leaves. When the elephant tries to eat that, it'll taste bitter and it's poisonous, so it won't touch. So among themselves there is that much sensitivity. So whether you pluck a fruit or a vegetable or cut a animal and eat, everything is cruel. It is just that we must do it with some sensitivity, only to the extent it's necessary. You should drop this idea of being a foodie. We all eat food. We must eat food, otherwise it'll be cruel to this one. But becoming an identity with food, not right, because that means we will indulge, we will not just nourish ourselves. We have a right to nourish ourselves. As a life, we have a right to nourish ourselves because this is how the food cycle is in the world. But we don't have a right to wantonly take another life just for pleasure. We have no business to do that. We have every right to nourish this life, but we have no right to enjoy taking another life. So don't call yourself a foodie, because food should never become the identity. For survival, for nourishment, we will eat whatever we have to eat, given the moment. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने सुनकर के काफी सारे डायलॉग्स, काफी सारे वर्ड्स को सुनकर के सीखने की भी कोशिश की होगी. एंड डेफिनेटली इफ समबडी हु वांट्स टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हु वांट्स टू स्पीक एनी लैंग्वेज वेल, he will have to listen to the conversation, he will have to listen to the dialogues and the expression
they are used quite often in the language. So definitely you have to listen to those things. उन सारी चीजों को सुनना पड़ेगा। वीडियो के बाद में इस हिस्से में हम कुछ ऐसे वर्ड्स को और फ्रेजेस को, एक्सप्रेशंस को लेकर के आए हैं जो आपने वीडियो में सुने होंगे, और हो सकता है आपको उनका अर्थ समझ में ना आया हो, अब उनका मतलब समझ में ना आया हो, उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उसमें से एक पहला वर्ड हमारे पास है फूडी। फूडी बोलते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो खाने पीने का शौकीन होता है, उसको खाना बहुत अच्छा लगता है, यू नो, अ पर्सन हु लव्स फूड एंड इज वेरी इंटरेस्टेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। यानी एक वो व्यक्ति जिसको खाना बेहद अच्छा लगता है और वो बहुत इंटरेस्टेड है अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के खानों को खाने में। तो आप फूडी हो सकते हैं, आप किसी को बोल सकते हैं आई एम फूडी, यू आर फूडी, ही इज फूडी, माय फादर इज फूडी। सो यूज इट इन अ लैंग्वेज डेलिबरेटली। आप अपने भाषा में इसको यूज कीजिए एंड डेफिनेटली दैट वुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग, वो आपके टंग पर आ जाएगा। सो आप जब भी किसी को पूछने वाले हैं कि क्या आप फूडी हैं, खाने के शौकीन हैं, यस, तो आप किसी को पूछ सकते हैं। किसी और के बारे में भी आप बता सकते हैं, आप अपने बारे में भी कह सकते हैं आई एम नॉट अ फूडी बट माई ब्रदर इज अ फूडी। मैं तो फूडी नहीं हूं लेकिन मेरा भाई फूडी है। तो मेक सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास में टू बी ऑन ब्रेक। टू बी ऑन ब्रेक का मतलब होता है जब आप छुट्टी पर होते हैं, जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं, आपने छोटा सा एक ब्रेक ले रखा होता है, आप छुट्टी पर हैं, हाँ, उस समय आप काम नहीं कर रहे होते हैं, तो आप किसी को ऐसा बोल सकते हैं आई एम ऑन ब्रेक, मैं छुट्टी पर हूँ, अभी मैं काम से अभी जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो आई एम एंजॉइंग, आई एम ऑन ब्रेक। आई वॉन्ट टू बी ऑन ब्रेक, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूँ, यस, मैं छुट्टी चाहता हूँ, तो आप ऐसा कह पाते हैं आई वॉन्ट टू बी ऑन ब्रेक। यूज दीज सेंटेंसेस डेलिबरेटली। इन सारे सेंटेंसेस को जानबूझ करके आप यूज कीजिएगा। ट्राई टू स्पीक देम एज ऑफन एज यू कैन। ही इज ऑन ब्रेक, आर यू ऑन ब्रेक, किसी को हम पूछना चाहें तो आप वहां पर वैसा पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट है हॉग ऑन फूड, मीन्स टू एंजॉय फूड वेरी मच। और जब भी आप कुछ ऐसा खाना देखते हैं जो बहुत लाजवाब होता है, आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, मीन्स टू ईट अ लॉट, खूब खाना, दबा के खाना, यस। आई एम पुटिंग ऑन वेट, आई डोंट वांट टू ईट अ लॉट बट व्हेन आई सी डिलीशियस फूड आई हॉग ऑन फूड, मीन्स वेट तो मेरा बढ़ रहा है, मैं बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं कुछ स्वादिष्ट खाना देखता हूँ आई हॉग ऑन फूड, मैं खूब खाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, इसका सेकंड थर्ड फॉर्म क्विट क्विट ही होता है। क्विट क्विट क्विट। क्विट अगर आप यूज करते हैं, इसके बाद में आप वर्ब को लेकर के आएंगे तो वहां आप आईएनजी को यूज कर लेंगे। जैसे कई बार आप किसी को बोल पाते हैं क्विट ईटिंग शुगरी आइटम्स, आप शुगरी आइटम्स लेना आप छोड़ दो, आप बहुत ज्यादा शुगरी आइटम्स खाते हो तो कम आप खाइए, उसको लगभग छोड़ दीजिए। क्विट स्मोकिंग, आप किसी को कई बार ऐसा भी बोल पाते हैं कि आप स्मोकिंग करना छोड़ दें। आई एम विलिंग टू क्विट प्लेइंग क्रिकेट, तो मेरी इच्छा है, मैं इच्छुक हूँ क्रिकेट को छोड़ने का, क्रिकेट खेलना छोड़ने का, तो आई एम विलिंग टू क्विट प्लेइंग क्रिकेट, वैसा आप कह सकते हैं। आई हैव क्विट, अगेन हैव के साथ में हम थर्ड फॉर्म का यूज कर लेते हैं, तो आई हैव क्विट स्पेंडिंग लेविशली, मैंने फिजूल खर्ची करना छोड़ दिया है, वैसा एक सेंस हो गया वहां पर। नेक्स्ट है हमारे पास में सी समबडी वर्ब प्लस आईएनजी, यानी जब आप किसी को कोई काम करता हुआ देखते हैं, वीडियो में भी अगर आप देखेंगे तो कई जगह इस फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। सी समबडी वर्ब प्लस आईएनजी, व्हेन आई सी समबडी हैविंग नॉनवेज, इसमें कहा गया है जब मैं किसी को नॉनवेज खाता हुआ देखता हूं, आप अगर वीडियो को दोबारा सुनेंगे तो वो आप समझ पाएंगे। व्हेन आई सी समबडी हैविंग नॉनवेज, यानी जब मैं किसी को नॉनवेज खाता हुआ देखता हूं या देखती हूं। आई सॉ हिम कुकिंग, मैंने उसको खाना बनाते हुए देखा, यस, पास्ट में जहां भी आप बोलते हैं वहां आप सेकंड फॉर्म को यूज कर लेते हैं। आई हैव सीन हिम टीचिंग, मैंने उसको पढ़ाते हुए देखा है, ऐसा एक सेंस हो गया, आई हैव सीन हिम टीचिंग। नेक्स्ट, आई एम डिजायरस टू सी यू डांसिंग, यानी मैं इच्छुक हूं, मेरी इच्छा है आपको नाचता हुआ देखने की। आई एम डिजायरस, डिजायरस डिजायर से बना हुआ एक वर्ड हो जाता है, इसका मतलब इच्छुक हो जाता है। आई एम डिजायरस टू सी यू डांसिंग। हिज फादर सॉ हिम स्मोकिंग, उसके पापा ने उसको स्मोकिंग करते हुए, उसके फादर ने उसको स्मोकिंग करते हुए देखा था या देखा, ऐसा एक सेंस हो जाता है। नेक्स्ट, दे आर लाइक माई बेबीज, सेंटेंस का यूज किया गया है वीडियो में, दे आर लाइक माई बेबीज,
यानी वो मेरे बच्चों की तरह है। यू आर लाइक माई ब्रदर, आप मेरे भाई की तरह हो। ही इज लाइक माई फादर, वो मेरे फादर की तरह है। शी इज लाइक माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर की तरह है। तो जहां भी आप ऐसा कहना चाहें, यू आर लाइक माई ब्रदर, हाँ, ही इज लाइक माई ब्रदर, ही इज लाइक माई फादर। आप कई बार किसी को ऐसा बोलते हैं कि आप बिल्कुल मेरे फादर की तरह है या सिस्टर की तरह है। सो मेक सम सेंटेंसेस। आपके कानों में तो ये सब जा ही रहा है, बट ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस, अपनी तरफ से कुछ सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश, बोलने की कोशिश जरूर करें, एंड डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू गेन फ्लुएंसी। वो निश्चित रूप से आपको फ्लुएंसी गेन करने में आपका मदद करेगा। फ्लुएंसी गेन करने का मतलब, जब तक आप अपने जवान को अभ्यास नहीं कराते हैं, सिर्फ सुनने से फायदा नहीं है, वोकैबुलरी बढ़ाने से फायदा नहीं है। अगर आप अपने टंग को प्रैक्टिस करा पाते हैं, अपने आप को बुलवा पाते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन मेक योरसेल्फ फ्लुएंट, आप खुद को फ्लुएंट बना सकते हैं। आगे है ह्यूमैनिटेरियन। इसमें एक शुरू में एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। जब सदगुरु बोलते हैं, सदगुरु से पूछा जाता है आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, तो सदगुरु वहां पर बोलता है आई एम अ ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन और कनेक्टेड विद इंप्रूविंग पीपल्स लाइव्स एंड रिड्यूसिंग सफरिंग। एक वो व्यक्ति जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं मानवतावादी, जो लोगों से काफी एक गहराई में कनेक्टेड होते हैं और जो लोगों के जीवन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो उनके दर्द हैं, दुख हैं, उनको कम करने की कोशिश करते हैं, उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। दे आर रियल ह्यूमैनिटेरियन। और सदगुरु एक ऐसी पर्सनालिटी है इस दुनिया में जो डेफिनेटली लोगों के सफरिंग्स को कम करने में लगे हुए हैं, उनको एक सही डायरेक्शन दिखाने में लगे हुए हैं। यस, तो ही इज रियल ह्यूमैनिटेरियन। मदर टेरेसा, एंड शी वाज अ ह्यूमैनिटेरियन टू। अगर आप मदर टेरेसा के एग्जाम्पल को भी लेते हैं, उन्होंने भी लोगों के लिए बहुत काम किया। यस, तो शी वाज अ ह्यूमैनिटेरियन। नेक्स्ट है सबस्टेंशियल। वीडियो में यूज किया गया है सबस्टेंशियल, और सदगुरु ने इस शब्द को यूज किया है। इसका मतलब एक किसी भी चीज का एक बड़ा हिस्सा, चाहे वो साइज के टर्म में हो, वैल्यू के टर्म में हो, या फिर इंपॉर्टेंस के टर्म में हो। लार्ज इन साइज, वैल्यू और इंपॉर्टेंस। The findings show a substantial difference between the opinions of men and women। यानी जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो एक काफी बड़ा डिफरेंस दिखाते हैं। किसमें? लोगों लोगों की राय में, यानी कि मैन और वीमेन की जो ओपिनियंस हैं उसमें एक बड़ा डिफरेंस दिखाते हैं। तो सब्सटेंशियल का मतलब बड़ा, लार्ज इन साइज, वैल्यू, इंपॉर्टेंस। पॉइजनस, एक वर्ड इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, पॉइजनस। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला। डोंट ईट दैट फूड, द फूड इज पॉइजनस। कई बार आप किसी को बोलते हैं मत खाइए, नो, द फूड इज पॉइजनस। फूड कैसा है? पॉइजनस है, पॉइजन से बना हुआ है। पॉइजन का मतलब जहर हो गया, और पॉइजनस, हाँ, जहरीला। एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज नरिश। नरिश का मतलब पोषण करना किसी का, यानी उसको कुछ ऐसा खाना देना जो उसके शरीर के लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड है। टू प्रोवाइड पीपल और लिविंग थिंग्स विद फूड इन ऑर्डर टू मेक देम ग्रो एंड कीप देम हेल्थी, ताकि वो लोग हेल्थी रह सकें। यानी कुछ ऐसा खाना या पीना उनको प्रोवाइड कराना जिसे खाकर के बॉडी की जरूरत पूरी हो सके, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। हमारे बॉडी को ठीक तरह से काम करने के लिए हमें वाइटामिन्स की जरूरत होती है, हमें आयरन का जरूरत होता है, हमें प्रोटीन का जरूरत होता है, हमें और भी मिनरल्स का जरूरत होता है। तो हमारे खाने में वो सब मौजूद होना चाहिए। अगर वो सब मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली वी आर नॉट नरिशिंग आवरसेल्फ, हम लोग अपने आप को नरिश नहीं कर रहे हैं। सो वी नीड टू नरिश आवरसेल्फ टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड and to do our jobs properly. We need enough good fresh food to nourish ourselves। यानी हमें एक अच्छे पर्याप्त मात्रा में एक फ्रेश फूड, अच्छे फ्रेश फूड की जरूरत होती है अपने आप को नरिश करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इस नेक्स्ट जो लाइन यूज किया गया है, दैट इज इट हैज बीन रिकॉर्डेड। पैसिव वॉइस है ये। मेक सम sentences on the base of this। इसके बेस पे आपको sentences बनाइए। Make 10, 20 sentences if you really want to be fluent। जैसे the food has been cooked, मतलब खाना बन गया है, passive है, the food has been cooked।
आपने किसी वस्तु से बोलने की कोशिश की बजाय किसी सब्जेक्ट से बोलने के, आपने एक वस्तु से बोलने की कोशिश की। हाँ, द वर्क हैज बीन डन, काम हो गया है। यस, द होमवर्क हैज बीन डन, होमवर्क हो गया है। यस, द न्यू रूल हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, जो नया रूल है उसको लागू कर दिया गया है। यू हैव बीन टोल्ड सो मेनी टाइम्स, आपको कई बार कहा गया है, ऐसा एक सेंस हो गया। ही हैज बीन गिवन मनी, उसको पैसे दे दिए गए हैं। द वेजिटेबल हैज बीन कट, सब्जी काट दी गई है। मेक सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम योर साइड इफ यू रियली वांट योरसेल्फ टू बी फ्लुएंट। इट इज बीइंग ईटन, यानी कि खाया जा रहा है। द बुक इज बीइंग रेड, किताब पढ़ी जा रही है। सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। उसको आप पढ़ें, बार बार पढ़ने की कोशिश करें और अपनी तरफ से भी कुछ सेंटेंसेस को बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा। द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, स्टूडेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं। द केक इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, केक बांटा जा रहा है। द फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बनाया जा रहा है। मदन इज बीइंग स्कोल्डेड, मदन डांटा जा रहा है। न्यू रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, नई सड़कों को बनाया जा रहा है। तो मेक सम सेंटेंसेस फ्रॉम योर साइड, अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस बना करके बोलने की कोशिश करें। इट इज बीइंग डन, जब भी कोई काम किया जा रहा है तो आप ऑब्जेक्ट से उसको बोल सकते हैं। हाँ, सब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड देयर। इट इज बीइंग ईटन, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, वीडियो इज बीइंग वॉच्ड। मेक सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर साइड। That's enough. Please don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon button. सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी एक मेहनत लगती है और आप उसको एडिट करना, कहीं से ढूंढ करके लाना और उन सब को जोड़ देना, so really it takes a lot of time. So please subscribe to the channel and share with your friends and relatives. Thank you.